today's meditation, as I was praying for this for many days, God has given me a chapter to share with you. Acts of Apostles, chapter 27. Acts of Apostles, chapter 27, 9 to 44. And we'll be reading from 22 onwards. काफी दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे एक अध्याय दिया है जिसमें से मैं आज प्रचार करूं। वो यही है कि प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय, chapter 27 sir. Yeah, Acts chapter 27, verse 9 to 44, but we will be reading from 22 onwards. और हम लोग जो मुझे आज प्रचार करना है वो प्रेरितों के काम 27 अध्याय वचन 9 से लेकर 44 तक, लेकिन मैं 22वें वचन से आगे आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। Adul, can you read from verse 21, 22, 23 and 24? प्रेरितों के काम 27 अध्याय वचन 21 से लेकर आगे। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। Amen. Let's pray for a while. Father, we come thy presence and we submit this particular words in your mighty hand, O Lord. Speak to us very personally and powerfully. No powers of darkness may prevail over your mighty word. Lord, we strongly believe you're going to speak to us. You're going to speak to us powerfully. You're going to speak to us very personally. You're going to speak to us to empower us and strengthen us. Your name may be glorified. In Jesus' name we do pray. Amen. Amen. So I know all of you or most of you are the students of the Bible or the ministers of the Word of God or the pastors, those who are in the ministry. और मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी है, सेवक है, पासबान है और उसकी सेवकाई में जुटे हुए हैं। And the title of the message, therefore, I have prepared in this way, ministering in the singing ship. और आज का वचन का जो शीर्षक है मैंने इस प्रकार से तैयार किया है कि डूबते हुए जहाज में सेवकाई करना। Ministering even in the singing ship. और डूबते हुए जहाज में भी सेवा करना, यह मेरा शीर्षक है। Usually we would like to do ministry when everything is all right. Most of us take decision and say when God's call comes, we say that let everything be all right, then I will enter into the ministry. और काफी बार हम लोग इस प्रकार से सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जब सारी चीजें ठीक हो जाए तब मैं जाकर सेवकाई करूंगा। Let me get some money and let my family be settled, then I will enter into the ministry. और मुझे थोड़ा पैसा कमाने दो और मेरा परिवार थोड़ा सा स्थिर होने दो, उसके बाद मैं सेवकाई करूंगा। Let me get a good church and let them invite me, then onwards I will truly start my ministry. और मुझे एक अच्छी सी कलीसिया मिलने दो और वो लोग मुझे निमंत्रण देने दो, फिर उसके बाद मैं जाकर के सेवकाई शुरू करूंगा। But in this evening time, God is asking with the model of Paul, saying that ministering even in the singing ship. लेकिन आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर पौलुस की रीति के अनुसार एक सेवकाई के विषय में हमसे बताते हैं कि डूबते हुए जहाज में भी सेवकाई हो सकती है। Everybody want to have a safe ship in their life. और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक सुरक्षित जहाज चाहते हैं। If you are called to be a pastor in a good ship, like a cruise or like a kind of a 5-star, or I don't know exactly about different kinds of ships. I live nearby a river. I see some ships here, so beautiful ships.
So everybody want to be pastor of a very calm, quiet, good ships. और हर एक व्यक्ति जो है एक अच्छी जहाज में रहकर या अच्छी जहाज में जैसे क्रूज है या फिर अन्य प्रकार के जो जहाज है उनमें जो स्थिर है ऐसे जहाजों में काम करना या सेवा करना पसंद करेंगे। But my dear servants of God, let me say, we are called not to serve in a safe ship. लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के दासों, हमारी बुलाहट इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ सुरक्षित जहाजों में सेवकाई करें। Particularly in this pandemic situation, who is willing to stop their ministry and want to find out something else for the living? In this night time, it's a call from the Lord saying that you are called to do ministry even in the sinking ship situation. आज के समय में यह वचन है विशेष करके ऐसे लोगों के लिए भी जो लोग इस महामारी की अवस्था को देख करके सोच रहे हैं कि वो सेवकाई को छोड़कर अपने जीवन या उपजीविका चलाने के लिए कोई काम धंधा करना चाहते हैं। आज मैं उनके साथ बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। Even in the sinking ship, you can do God's ministry. और इस डूबते हुए जहाज में भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। Pastor ji or sir, that is very easy to say, but it is very difficult to practice. और आप बोल सकते हैं कि पास्टर जी या फिर सर, यह बात करने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन व्यवहारिक तौर में इसको लागू करना बहुत ही कठिन है। When the situation comes difficulty, when the situation comes problem, how you can do a ministry there? जब अलग-अलग प्रकार की अवस्थाएं आती है, समस्याएं आते हैं, तो उस समय हम लोग कैसे सेवकाई को आगे बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं? Let's together with me we can discuss and meditate upon this particular verse, and trusting the Lord, I truly believe God will speak to us to do ministry even in the time of turmoil. और आइए इस समय हम लोग मिलकर जो है एक वार्तालाप करेंगे और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे और विश्वास के साथ हम लोग इस बात का अंगीकार भी करें कि परमेश्वर ऐसे कठिन अवस्थाओं में भी हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। First one, we should know our ship and the people in it. सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम जाने जहाज और उस जहाज में रहने वाले लोगों को। Know your ship and the people in the ship. और जिस जहाज में आप हैं उस जहाज को उस जहाज के लोगों को पहले आप जान लो। I know the pastors and all, you should know our church or your church and the people in the church. और पासवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जरूरत है कि आप पहले अपनी कलीसिया और अपने कलीसिया के लोगों को व्यक्तिगत तौर से जान लें। We should not be like 5-star pastors. They come at the stage and they go. और हम लोग ऐसे 5 स्टार पासवानों के समान ना बने जो आते हैं कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। Once their preaching is over, they are left and there is no connection with the believers, no visiting to the believers' home or no call to them. But Paul here, he knows the ship, its destination, and also the people, those who are in the ship. और एक बार वो आकर के अपना सेवकाई या फिर प्रचार करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद किसी प्रकार के विश्वासियों के साथ मुलाकात या फिर उनको विजिट या उनसे बातचीत उनकी नहीं होती है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि हमारी सेवकाई ऐसे है कि हमें डूबते हुए जहाज में भी करना है। So who all are there in the ship? तो हमें जानना है कि इस जहाज में कौन-कौन है। It is Paul is not going for a pleasure trip or it's not a tour that Paul is making or even not a mission trip also. और पौलुस जो है यहाँ पर कोई आनंद करने के लिए जो है जाने वाला कोई यात्रा के लिए नहीं जा रहा है या फिर कोई सेवकाई की यात्रा के लिए भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं इसमें। But he was caught as a prison and he was handed over as a prison to this particular ship. लेकिन उसको पकड़ा गया और उसको कैदी के रूप में यहाँ से लेकर जा रहे हैं और किसी दूसरे के हाथ में उसको सौंपने के लिए कैदी के रूप में उसको सौंपने के लिए वो लेकर जा रहे हैं जहाज के द्वारा। Chapter 26, you understand that. 27, we read like that. When it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul as a prison and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan regiment.
और प्रेरितों के काम 27 के वचन 1 में इस प्रकार से लिखा है, जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाए, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। So 4 kinds of people are there in this particular ship. और इस जहाज में 4 प्रकार के लोग हैं। One is Paul and prisoners. और एक है पौलुस और फिर है अन्य कैदी लोग। Along with Paul, there were 2-3 friends are there. They are also present. One is mentioned in verse 2, Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, and also Luke is the other, and he used to say, we might be, Luke also might be there. Sometime Mark also might be there in this particular situation where Paul and small group of his friends, prisoners, then Julius, a centurion, and 4th groups, yeah. तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कैदी, जैसे मानो एक अरिस्तर्खुस करके नाम का एक व्यक्ति है जो थिस्सलुनीके का है, और वो भी एक कैदी है। और साथ ही साथ हम लोग लूका को काफी बार यह कहते हुए सुनते हैं कि हम करते हुए, मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं कि लूका भी शायद से उस जहाज में था, या फिर मरकुस भी उस जहाज में था, और यूलियुस जो वहाँ का सूबेदार है वह भी उस जहाज में था। And also people were in verse 11, you understand, helmsman and owner of the ship. Helmsman means like a captain of the ship. Then you find the owner of the ship in this particular ship available. और वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि वहां पर उस जहाज का एक कप्तान भी है, और फिर उस जहाज का स्वामी जो है वो भी इस वचन में देखने को मिलता है। Total 276 people are there in this particular ship. और लगभग यहाँ पर 276 लोग हैं इस जहाज में। Paul knows all of them in a way, how they will react, how they are going to do, everything. Paul was aware about that. और पौलुस यहाँ पर बहुत ही जानकार था उनके स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में, कि वो किस प्रकार से बर्ताव करेंगे या फिर किस प्रकार से उनकी सोच है, ये सारी बातें पौलुस बहुत ही अच्छे रूप से जानता था। How captain will be dealing with the issues, how the owner of the ship will be dealing with this, how the prisoners will be behaving it, all that Paul was aware, being in the ship as a minister of God. और पौलुस एक परमेश्वर का सेवक होने के रूप में, एक नाते में, वह हर एक को जो है जांच कर समझता था कि इस जहाज का कप्तान कैसे व्यवहार करेगा, इस जहाज का स्वामी कैसे व्यवहार करेगा, या फिर यहाँ पर जो कैदी लोग हैं, जो बंदी लोग हैं, उन लोगों की अवस्था या फिर उन लोगों का बर्ताव किस प्रकार से होगा जो उस जहाज के अंदर थे। If you want to know an example, you read verse 30, where a lifeboat they got, the sailors, including the owner of the ship, captain, and their crew, they tried to escape from this. Even centurion was not able to understand that. But Paul able to understand these people going to escape. और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप वचन 30 में पढ़ो, तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि उस जहाज में कुछ छोटे-छोटे नावें भी है, और वो नाव के द्वारा कुछ हो सकता है, उसके बारे में जो बात वहाँ का जो सूबेदार था वो भी नहीं समझ पाया, लेकिन पौलुस समझ पाया कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो उसके सहारे यहाँ से निकलकर भागना चाहते हैं। Pastors, preachers, and the ministers of the word of God, let me talk to you, speak to you, saying that the people in front of in your congregation, people that you are going to address are not same as you think of. और सभी पासवानों को और सभी सेवकों को मैं बताना चाहता हूँ कि वे लोग जो जिनको आप मिलते हो, या फिर जो आपके संपर्क में रहते हैं, वे वैसे ही नहीं हैं जैसे आप उनके विषय में सोचते हो। They appears to be very helpful. Sometime we have to be very careful. It will be dangerous people. वो ऐसे दिखाते हैं कि वो आपको बहुत ही मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ अलग रूप से अगर देखा जाए तो वे उससे काफी भिन्न भी है। I can see some of the pastors are smiling. और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ पासवान लोग हंस भी रहे हैं।
And that pastors are smiling and asking, oh, I did not keep my video on, then how this pastor came to know about it? और फिर वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो अपना वीडियो ऑन नहीं रखा है, फिर भी इस पास्टर को कैसे पता चला? We have to discern people like that. क्योंकि हमें इस प्रकार से समझ लेना है मन में लोगों के विषय। How people are not like us we think of. और लोग जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं हैं। To getting attendance, sometime attending the chapel. If they lose the attendance, they cannot write the exam. और हमें मतलब एग्जाम लिखने के लिए या फिर अटेंडेंस हमारी बढ़ाने के लिए हम लोग चैपल में आते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको परीक्षा लिखने को नहीं मिलेगा। I'm not talking about agape, I am talking about new life. मैं अगापे के विषय में नहीं, लेकिन मैं न्यू लाइफ के विषय में कह रहा हूँ। We have to be discerned of the people that we are going to do ministry. और जिन लोगों के बीच में हम सेवकाई करने वाले हैं, हमें उन्हें आत्मा में परखना है। They can claim they are saved, but their behaviors and action may not be like that. और हो सकता है कि वो चढ़ सकते हैं या फिर अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन उनके जो कार्य या उनका जो बर्ताव है वो उस प्रकार से नहीं है। When the ship is about to sink, is going to destroy, these people take self advantage, and they want to save themselves. Let others may perish or whatever may be. They plan and prepare plans to put us in trouble. और जब वे लोग उनको जब ऐसा अवसर मिलता है कि अपनी जान को बचा सकते हैं, तब उस समय में वो अपने आप को बचाने की ऐसी कोशिश करते हैं और बिना दूसरों का चिंता किए कि दूसरों का क्या होगा, और वो चाहे वो मर भी जाए तो भी उनको उसकी परवाह नहीं, लेकिन वो अपनी जान को बचाना चाहते हैं। Let me encourage you in this particular evening time, receive the power from the Lord to discern the people, discern the church, discern the places where you are called to do ministry and do effectively God's ministry accordingly. और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, एक सेवक होने के नाते में जिन भी लोगों के बीच में, जिस भी जगह पर आप सेवकाई करते हो, उनके बीच में एक सामर्थ्यशाली सेवकाई करने के लिए जरूरत है कि सबसे पहले आप आत्मा में उन सब लोगों को और उन जगहों को और उन बातों को परख लो। Let me go a little fast to my second point. और मैं अपने दूसरे पॉइंट में थोड़ा गति से चलना चाहता हूँ। In the sinking ship, what you have to do is to warn the people about the danger. और इस डूबती जहाज में हमारा कार्य है कि हम लोगों को आगे के खतरे के विषय में चेतावनी दें। Warn the people about the danger ahead. और आगे में जो उनके सामने खतरा है उसके विषय में लोगों को चेतावनी दें। Whether they agree or not is a secondary matter. You are called, you received the vision, you have received the word of the Lord, is to deliver to the people in the ship. और चाहे वो विश्वास करे या ना करे, माने या ना माने, लेकिन आपको जो बुलावट है परमेश्वर की ओर से वो यही है कि आप इस जहाज को बचाना है, जहाज के लोगों को बचाना है। Oh, Pastor, these believers are not talking to me, therefore I will not share the God's word to them. This fellow is not I will not look at this friend and will not share. So such lenient excuses, you leave it, but you obey God's word to preach the people in the sinking ship. और हम लोग काफी बार इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं करता तो पास्टर मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो व्यक्ति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता इसलिए मैं भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस प्रकार के जो बहाने हैं उन सब चीजों को छोड़ दो और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देकर उसका अनुसरण और उसके वचन का पालन करने की कोशिश करो। Verse 10 is the key verse for that, where Paul is saying after the fasting, saying that men, I perceive that this voyage will end with result with disaster. और यहाँ पर वचन 10 में पौलुस उनके उपवास के बाद इस प्रकार से कहता है कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी हानि होने वाली है। Even in the lives we are going to happen, so it is better don't get into the board. Please stay here. We can wait.
It is from the Lord. He encouraged to the centurion, all the audience in the singing ship or in the ship. He talked God's warning message. और यहाँ पर जो है वो लोगों को इस प्रकार से चेतावनी देते हुए बोलने लगा कि यह जो छोटी नावें है वो आपको बचा नहीं सकती है, आप अपने आप के लिए इस प्रकार से मत करो खुद से ही जाकर, लेकिन आप इंतजार करो। और वो इन सब लोगों के सामने और उस सूबेदार के सामने भी परमेश्वर की ओर से आने वाली चेतावनी को बहुत ही गंभीर रूप से उनके साथ बांटा पौलुस ने। When he said about this message from the Lord, he became alone or a minority, and all other become against Paul. और जब उसने ऐसा कहा कि यह संदेश मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, तब वह जो है अकेला हो गया और ज्यादा संख्या के सभी लोग जो है उसके विरोध में हो गए। My dear friends, we can preach according to the pleasing of others. For pleasing others, we can preach it. और मेरे प्रिय परमेश्वर के सेवक लोगों, हम लोग काफी बार दूसरों को प्रसन्न करने वाले संदेश प्रचार कर सकते हैं। Usually there is a saying, message sometimes is like a massage. और कोई इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे जो संदेश है वो एक मसाज के जैसे, हमारे मैसेजेस जो है वो मसाज के जैसे भी होते हैं। But I used to say it should be like a missile piercing into the heart of the people. लेकिन मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि यह एक मिसाइल के समान हो जो लोगों के हृदय को चुभते हुए आगे बढ़ सके। Don't think what others may think about it. और इसके बारे में मत सोचो कि लोग उसके विषय में क्या सोचेंगे। You are called by God and you received from the Lord, and God told you to say, I told you to say, so are you going to obey God or the people? और परमेश्वर आपसे यही कहने वाला है कि तुमको लोगों से कहना है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है, फिर आपको वही करना है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे या फिर लोगों को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करोगे? God has given you vision and you have to share it. Don't look into the people who is giving more tithe, people who is support. Yes, you acknowledge that, but not look into their face. If God told you to preach about it, about the tithe, you preach about the tithe. If God talked to you to preach against the pornography, you preach about it. If God asks you to talk about the holiness to preach, you preach about it. Don't give a candy, soothing message to massage the audience. और यह जो है कार्य परमेश्वर का कार्य है, इसलिए परमेश्वर के आत्मा के अनुसार ही सेवकाई करो। अगर परमेश्वर आपको बोलता है लोगों की उन्हें अगर दशमांश के विषय में प्रचार करो तो वही प्रचार उनको करो। अगर परमेश्वर कहता है कि आप जो है गलत चित्रों को देखने के विरोध में प्रचार करो तो वही प्रचार करो। अगर परमेश्वर कहते हैं कि पवित्रताई का प्रचार करो तो वही प्रचार करो। लोगों को देख करके कभी भी प्रचार मत करना कि वो ज्यादा दशमांश देने वाला या फिर आर्थिक सहायता करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जो संदेश परमेश्वर आपको बोलते देने के लिए वही संदेश आपको देना है। Like most of the churches, here Paul became alone, and we read further saying that nevertheless the centurion was more persuaded by the captain and the owner of the ship, and the majority was told, we read majority people advised, let's go without heeding to the warning put forward by Paul. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन 11 के आगे, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना, परंतु वहां के जो ज्यादातर लोग थे उन लोगों ने इन बातों को अनदेखा करके सोचने लगे कि हम लोग अपनी ओर से ही यहाँ से निकल चले। I should appreciate the ship which was traveled by Jonah. और मैं सच में बहुत ही सराहना करता हूँ उस जहाज की जिसको जो चला रहे थे, जो जिस जहाज में योना था। Just opposite of what is happening. और यहाँ पर जो हो रहा है बिल्कुल उसके विरुद्ध वो जहाज था। In the ship, believing believers seeking from the Lord, getting the message from the Lord, where the pastor is sleeping. और उस जहाज में जो लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, वो लोग
परमेश्वर से संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो पास्टर था वो सो रहा था। Hope you are able to understand what I am talking. और मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। The believers are very pious, waiting for the Lord, receiving from the Lord, and the pastor is sleeping underground, and very just opposite what is we see there. और वहां पर हम देखते हैं कि जो सर्वसाधारण लोग हैं, जो बिलीवर जिसको हम लोग आज के रूप में अगर समझ सकते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर से संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो पासवान थे वो उस नाव के निचली जगह पर जाकर के आराम से सो रहे थे। और ये बिल्कुल भी विरोध है, जो विरोधाभास की बात है, जो आज अभी हम लोग पौलुस के विषय में पढ़ रहे थे। In this evening, are you a Jonah or a Paul in the आज singing की ship? शाम में और इस डूबते हुए नाव में क्या आप एक योना के समान हैं या फिर एक पौलुस है? Are you doing a ministry where the ship is about to sink? Are you going to sleep, or are you going to deliver God's message that God has given to you? और इस डूबती हुई जहाज में क्या आप जोना के समान जाकर के आप सोना चाहते हो, या फिर पौलुस के समान खड़े होकर जो संदेश परमेश्वर ने आपको दिया है वो प्रचार करना चाहते हो? If you sleep like a Jonah, you are out of the ship. Transfer. और यदि आप योना के समान सो जाओगे तो आप जहाज से बाहर फेंक दिए जाओगे। But when you stand firm for the Lord, God is going to use you, and He is going to choose you, and will be a channel of blessing, not only for you and also people around you who are despair, who are in trouble. You will be an encouragement for them. Hallelujah. लेकिन यदि अगर आप पौलुस के समान परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको चुनेगा, आपका इस्तेमाल करेगा, और आप जो है मरोगे नहीं, लेकिन आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों के लिए आप एक आशीष का कारण, उत्साह का कारण और बचने का कारण बन जाओगे। And it is therefore, God is saying to Paul, there we have read there, verse 21 onwards, 23, where we said that indeed God, 24 verse B, verse 24 B, indeed God has granted you all those who sail with you. और हम लोग हमने पढ़ा भी है, और वचन 24 के हम लोग दूसरे भाग में पढ़ते हैं कि देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। All were given. Actually, they were not believers at the beginning. और ये सभी जो है उसके हाथों में दे दिया है, लेकिन हम देखते हैं शुरुआत में ये सभी विश्वासी नहीं थे। Paul, then Aristarchus, then might be Mark and Luke will be there with him, and rest of them prisoners, the captain, the sailors, the military people. These were non-Christians. Now God is telling Paul, you are in the sinking ship. Are you ready to do ministry? Great fishes you are going to catch. That is, 276 people are in your boat. You cast your net in this particular turmoil situation I am going to give you in this night time. Hallelujah. और अगर शुरुआत के समय में अगर देखा जाए तो वहां पर पौलुस के साथ ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ एक अरिस्तर्खुस था, और फिर हो सकता है लूका और मरकुस वहां पर होगा, लेकिन उनको छोड़ और कोई भी नहीं है। यूलियस जो पलटन का सूबेदार था, या फिर कप्तान, या फिर वहां पर जो मिलिट्री के लोग और कैदी लोग थे, ये सभी लोग गैर मसीह है, वो परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग नहीं है। और परमेश्वर यहाँ पर पौलुस से कहता है कि पौलुस, क्या तू तैयार है? अभी मैं इन सब लोगों को तेरे हाथों में देने वाला हूँ, और 276 लोगों को मैं तेरे हाथों में दे रहा हूँ। क्या तू सेवकाई करने के लिए तैयार है? इस प्रकार से परमेश्वर उससे कहते हैं। Let me tell you some of the people directly the message from the Lord. When the ship is about to sink, there is no more hope in this ship, but God is telling you, don't leave, don't sleep, stay there, stay there, stay with the people. God is going to give all of them without losing anybody's life in your hand. Are you believing it? If you believe it, say hallelujah.
हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आप बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभु ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं बताता हूँ। परमेश्वर आज हमसे कहता है कि जो वचन आपकी ओर आ रहा है, वो बहुत ही स्पष्ट है आपके लिए। अगर आप विश्वास करते हो, तो उसका काम करने के लिए इस डूबती हुई नाव में तैयार हो जाओ, और अगर आप उसके लिए तैयार हो और आप सोचते हो कि ये वचन आपके लिए है, तो बोलो हालेलुया। Don't leave the boat, don't leave the ship because the ship is going to wreck or going to destroy. और इस जहाज को छोड़कर मत जाओ, और उस क्योंकि और इस जहाज जो है पूरी रीति से नष्ट होने वाला है। But stay there and do God's ministry. Stay there. Don't go. Don't turn back. Don't go back because of the situation. Don't go back. Stay there and do God's ministry. And you see wonders happening. You see people are coming to the Lord. You see the miracles happening. You see the healing is happening. Hallelujah. लेकिन उस जहाज को आप छोड़ो मत, वहीं पर रहो और सेवकाई करो। पीछे मत हटो और उस जहाज को भी मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर जो है आपका इस्तेमाल करने वाला है और उस जहाज को परमेश्वर बचाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. Let me go and finish the final sub point or the point for tonight. और आज की रात का जो अंतिम बिंदु बताकर मैं अभी समाप्त करना चाहता हूँ। In the sinking ship, prepare them for the eternity. इस डूबते हुए नाव में उन्हें तैयार करो अनंत जीवन के लिए, Prepare them for the eternity. और उन्हें तैयार करो अनंत जीवन के लिए। That's what we are called for, to do ministry in the sinking ship. और इसीलिए हमें बुलाया गया है कि हम डूबती हुई इस नैया में सेवकाई करें। The believers will be in different kinds. Sometimes they will not obey. Sometimes they about to escape from, leave from the church. But do as a shepherd ministry, keeping them together, sharing God's word, and prepare them to reach the destiny in the proper time with the power of God. और कभी-कभी हो सकता है कि आपके विश्वासी जो है आज्ञा पालन करने वाले ना हो, या फिर आपसे मुंह मोड़कर अलग जाने वाले हो, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हो लो, उनको जो है अपने पास लो। एक चरवाहे की समान सेवकाई करो और उनको जो है परमेश्वर का वचन प्रचार करो। There can be time where you cannot see the sky, you cannot see whether day or night, you don't have any food to eat, or you are tired. All people are tired, but stand firm the Lord, wait for the Lord's voice, receive the voice, and prepare these people for the eternal shore. और हो सकता है कि ऐसा भी कोई समय आए जहाँ पर आप आसमान को न देख पाओ, या फिर कभी आपके पास भोजन वस्तु की कमी हो, या फिर आप अन्य अलग-अलग परेशानियों में हो, तो भी आप जो है अपनी जहाज को मत छोड़ो और अपनी सेवकाई को मत छोड़ो, और जो काम प्रभु ने आपको दिया है वो लगातार करते रहो और लोगों को अनंत जीवन के लिए तैयार करते रहो। And we read there, all the hope has gone for their life. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उनके जीवन की सारी जो आशा है वो निकल गई थी। Why the whole hope gone for this ship? और क्यों इस जहाज के सब लोगों की जो आशा है वो डूब चुकी थी? They are about to reach a shore because of the heavy, the Euroclydon, a wind stopped their sailing. और वे जो है अपने छोर के पास एकदम पहुंचने ही वाले थे, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि बहुत ही भारी आंधी और एक यूरकुलिन नाम की जो आंधी, बड़ी आंधी 14, कहलाती verse है, 14. वो आ पर आई, और फिर उसके द्वारा वो वहां से जो है वो रुक गए थे। Verse 16, they tried to get a lifeboat. In verse 30, they have just avoided it. Now they are like between shore and between sea and the devil. अभी अगर 16वें वचन में पढ़े तो वहां पर वे लोग जो है छोटी-छोटी डोंगियां वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन 30 से आगे अगर पढ़े तो अभी वो जो है उससे भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उसके साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। The lifeboat they had, that also is not there. Now everything is finished, and they believed or that we are going to finish in this place. और वहां पर जो भी डोंगियां थी वो सब कुछ जो है उन्होंने वहां से अभी निकाल कर फेंक दिए। अभी उनके पास किसी प्रकार की आशा नहीं थी, और उन लोगों ने सोचा
कि अभी सब कुछ समाप्त हो गया। Verse 33 we read like this, and as day was about to dawn, Paul implored them all to take food, saying, today is the 14th day. You have waited and continued without food and eaten nothing. Therefore, I urge you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from the head any of you, because God has told me like that. So you be encouraged and strengthened. We are going to reach the destination. Hallelujah. आमीन। और वचन 33 और 34 के आगे हम पढ़ते हैं, जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। Our believers, our friends, all are going to a turmoil situation. हमारे विश्वासी, हमारे मित्रगण, ये सब लोग जो है बहुत ही एक दुखदायी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। They want to give up because of the situation that they are facing. और जिस अवस्थाओं में जिसका वो सामना कर रहे हैं, उससे वो हार मान चुके हैं, वो पीछे हटना चाहते हैं। Because of the corona affected, they say that I don't want to pray, I don't want to go church, I don't want, I am going to destroy, I am going to die, I am in despair. और क्योंकि वे जो है कोरोना से ग्रसित हुए, इसलिए वो इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ, मैं चर्च में नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं जो है मसीह के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, और इस प्रकार से वो भटक रहे हैं। This time, as we are called to do ministry in the singing ship, giving them hope, giving them courage, preparing them for the eternity that is we are called for. Amen. Hallelujah. और आज के शाम में जैसे हमारी बुलाहट है कि हम एक डूबती हुई नाव के अंदर में सेवकाई करना है, आज हमको तैयारी करना है कि ऐसे ऐसे लोग जो निराशा में हैं, उनको हम लोग प्रभु के वचन बताकर उनको उत्साहित करें। Why God called us? Why we are in this meeting? Do you think that for getting prosperity? You think that you getting good house to get a healing or to get all these things? Yes, on the one side you expect that, but the ultimate thing is to go with the Lord when Christ comes, to see him. Don't lose our eternity because of the worldly pleasures. और आज की सभा में हम लोग क्यों है? क्या अच्छी जॉब या अच्छा घर या फिर अच्छा हमारा बैंक बैलेंस बनाने के लिए या फिर अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए? हाँ, एक साइड में वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जब यीशु मसीह का आगमन होता है, तब हम प्रभु के साथ उठा लिए जाए और उसके साथ अनंत जीवन के लिए जीने के लिए अपने आप को तैयार कर सके और वहां पर रह सके। You know why Paul was not afraid as other people were afraid in the singing ship? और इस डूबते हुए जहाज में आपको मालूम है, जब जब दूसरे सब लोग डर गए, तब पौलुस क्यों नहीं डरा? Two things. दो बातें। One, he was received God's vision that he will be witnessing in the Rome. That is the main reason he was very confident. He said that we are not going to die. पहली बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा सुनिश्चित था कि उसने परमेश्वर की ओर से एक दर्शन पाया हुआ है कि वो रोम में जाकर के परमेश्वर का एक गवाह बनने वाला है। यह एक पहला कारण था जिसके कारण पौलुस के हृदय में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसे रोम में जाकर गवाह बनाने वाला है। Second, in Philippians he says that for living is for Christ, dying is for gain. That is what his hope is. Even if I die, even if I face difficult situation, even if I have to face the death, I am very much happy that I can be with the Lord. Such a hope he had. Therefore, he has no fear in the single ship to do ministry and encourage others. Hallelujah. और वह जो है दूसरा यह है कि उसके पास जो फिलिपियो में वो कहता है, उस प्रकार से एक प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की ओर से कि मेरे लिए मरना जीना मसीह है और मरना भी मेरे लिए मसीह में फायदा है, क्योंकि अगर मैं प्रभु में मरूंगा तो मैं कभी भी मेरे आत्मा में नहीं मरूंगा, लेकिन अनंत काल के लिए मैं अपने प्रभु के साथ जीवन जीने वाला हूँ।